Hello. So yes, let's start with this. So we are going to cover the control system as soon as possible क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फरवरी में गेट का एग्ज़ाम है और वी वांट टू कवर ऑल दीज थिंग्स बिफोर October 15th, जैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिले. So let's not waste any time and get deep dive into it. What is a control system? So control system is anything that manages, commands, directs or regulates the behavior of other devices or systems. Just like your regulator. आप जैसे जैसे रेगुलेटर को बढ़ाते हैं तो पंखे की स्पीड उसका आरपीएम विच इज़ अ फिजिकल थिंग वो चेंज होने लगता है जैसे जैसे आप रेगुलेटर को घुमाते हैं. तो इट इज़ अ कंट्रोलर, इट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम बेसिकली. जैसे कि आप फैन का रेगुलेटर मैंने उसमें भी इंक्लूड किया है. Cruise control, autopilot, all these things. These control systems are of two types. First one is of course open loop, and the second one is closed loop system. Open loop system and closed loop systems are really important. That they should be discussed. Let me just see if I can show you. So basically, this is IS. This is input in S domain, or what we call as Laplace domain. This is input. This goes into plant or process, whatever you want to call it. This gets into plant with a gain of GS. GS is basically gain of the plant. Now I'm writing GS just so that you know that it is a good practice to write GS. Otherwise, it is a norm that we write it in Laplace domain. अब यहाँ पे CS आएगा. CS is nothing just controlled output in S domain. This is this whole thing. This is a this is a open loop system. और इसी में जब हम लोग यहाँ से we unity gain. This is unity gain. I didn't meant to get this bump, but somehow it got here. Let's just so yeah this. But here is a change. अब यहाँ पे we have to add a adder. Adder क्या होता है? तो बेसिकली एडर हम लोगों के इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करता है और उसके बिहाफ में हम लोगों के जीएस को चेंज करता है. So it looks something like that. This is closed loop system. This is feedback. Generally यहाँ पे हम लोगों ने यूनिटी फीडबैक लिया, but it has some kind of gain that we know as HS, or feedback loop gain HS. So this is HS. Hope it looks clear to you. And now forward, open loop versus closed loop system. Open loop and closed loop systems are basically um, two different types of control systems. Open loop systems में एक ऐसी चीज़ है कि आप उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, वो अपने आप चेंज नहीं होंगी. पर कंट्रोल क्लोज लूप सिस्टम में वो कंटिन्यूसली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे वो चेंज होती रहती हैं. जैसे कि लेट मी जस्ट चेंज होती रहती है इन द सेंस कि आपने मान लीजिए कोई पंखा बनाया. पंखा आपने अभी ये देखा कि ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल था. अब क्लोज लूप सिस्टम में जब कोई पंखा है और जब वो ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करता है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करता है, तो एक ह्यूमिडिटी डिटेक्शन के लिए वहाँ पे कोई सेंसर लगाया गया है. तो उस सेंसर की मदद से जब वो अपने आरपीएम बढ़ाता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज क्लोज लूप सिस्टम.
जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस भी किया था। अगर हम लोग इस एच एस को हटा देते हैं तो इट बिकम्स ओपन लूप सिस्टम, और अगर इस एच एस को लगा देते हैं तो इट बिकम्स अ क्लोज लूप सिस्टम। लेट्स मूव अहेड to the transfer function. Transfer function is a really important topic. The ratio of Laplace transform of output to the Laplace transform of input with the initial conditions taken to be zero. Initial conditions are basically कि हम लोग कई सारे assumptions मानते हैं कि कोई भी सर्किट अचानक से ही अपने पीक पे नहीं पहुंच जाता। इट टेक्स अ टाइम, इट टेक्स सम टाइम। तो उस पे ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है कि कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लाप्लास में चेंज कर सकते हैं। तो आप उसका भी एक रिव्यू यहाँ पे ले सकते हैं। डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इक्वल्स टू यू, इट बिकम्स वन अपॉन एस प्लस वन, क्योंकि डी वाई बाई डी टी ये आ जाएगा हमारा वाई एस into s। बाय द वे डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये वाई एस और s यहाँ पे दो बार मल्टीप्लिकेशन है। इट इज़ y which is a function of s, and then this comes plus ys y in s domain, and it is equals to, sorry, let's just it is equals to us. I hope you understand. It is s. So yeah, when you take ys common, and us by ys becomes 1 plus 1 upon s plus 1. So let's move on to this टाइम डोमेन एनालिसिस। now this is a really important topic. इस पर क्वेश्चन भी बनेंगे और इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। एसएफजी मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी क्लास। इसके बाद जब हम लोग इसके बाद जब भी मिलेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि एसएफजी के और ट्रांसफर फंक्शंस के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग शॉर्ट्स में ही निपटा दें। वी डोंट नीड अ वेरी लॉन्ग वीडियो फॉर दैट। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेसिक वाले, but I want to keep it short, so that's why I would be posting short form content on that. और जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि ज़रूरत है that we need to discuss it quite a lot, तो वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। दूसरा है टाइम डोमेन एनालिसिस। इसमें एक चीज़ हमें और आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड विच इज़ बेसिकली दिस ग्राफ। let me just which is this graph again. So in this graph, things go something like this. This is gain. This is gain, and this is frequency. Frequency, or you can say no, it's actually not frequency. It is time. I'm sorry, I was writing frequency. It is time. This is time. So yeah, the test signals basically that are used is stamp, ramp, and impulse. So this is the gain of the plant, and then we test using it multiple. So basically the impulse, this is the responses that we take as a reference, and then we try to conclude it. तो हम लोग स्टेप रिस्पॉन्स में, रैम्प रिस्पॉन्स में और इम्पल्स रिस्पॉन्स में देखेंगे कि टाइम डोमेन एनालिसिस कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ये क्या है? तो आप जानते ही हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स आर दोस जिसमें मेमोरी टेकिंग एलिमेंट या मेमोरी एलिमेंट जो कि है इंडक्टर या कैपेसिटर, वो एक ही होता है। यानी कि समथिंग लाइक this, this is a resistor by the way,
This is a capacitor, and this is a one order system, something like this. और जब मैं इसमें इंडक्टर या एक और कैपेसिटर भी हो सकता है ये, बट आई हैव ट्राई टू ऐड अ इंडक्टर इंस्टेड. तो जब हम लोग ये कर देंगे तो इट बिकम्स अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. और डैम्पिंग रेशियो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, वी विल लुक ईच एंड एवरी aspects of time domain analysis in great detail जैसे जैसे हम लोग आगे लेक्चर्स करते जाएंगे. फॉर नाउ अभी हम लोगों को बस इतना ही याद रखना कि डैम्पिंग रेशियो इज नथिंग बट दिस थिंग राइट ओवर हियर. जब हम लोगों के पास इस फॉर्म में ये हम लोगों का नेचुरल फॉर्म है या कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स का, तो यहाँ पर जो टर्म आएगा ये टर्म ओमेगा एन एस यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, इसको हम लोग डैम्पिंग रेशियो बोलते हैं. इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. देन देयर इज स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम. स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एक कंट्रोल सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो बाउंडेड होना चाहिए. बाउंडेड का मतलब कि वो किसी भी टाइम पे इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए. और अनस्टेबल सिस्टम वो होते हैं जिनका जो इनफाइनाइट चले जाते हैं, जैसे कि लेट्स जस्ट सी एन एग्जांपल. सिंक फंक्शन आप लोग जानते होंगे. दिस सिस्टम तो something like this. अब start small and then reaches this. This is nothing but sin x multiplied by e to the power x. You get my point, right? Uh, but let me just write it as well. Ex or e tau basically. Let me just e tau. So this is the sinc function. And simply we have a function in which it is not decaying, rather it is more and more expanding. तो उसको हम लोग अनस्टेबल सिस्टम बोल देते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट बाउंडेड. और इसको हम लोग एसेस कैसे करेंगे, तो वी हैव राउथ-हॉर्विट्ज़ क्राइटेरिया फॉर दैट. वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस regarding this. Performance specifications, rise time, settling time, overshoot और steady state error. Rise time is basically जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था. Let me just redraw it. This thing. So when the gain becomes almost here, when the gain becomes almost 10% to 90% of final value, then this time is called rise time. Settling time is when the time to remain within plus or plus 2% or plus 5% of the final value, it is specified basically. Overshoot क्या होता है कि मैक्सिमम पीक वैल्यू होती है जिससे जो फाइनल वैल्यू के अबव होती है. Steady state error is the difference between input and output as the time tends to infinite. बेसिकली वही वो चीज़ है जो हमें एक्सेस करने में मदद करती है कि इनपुट और आउटपुट में कितना डिफरेंस आ चुका है, और उसी से हम फिर गेन को कंट्रोल कर पाते हैं. सो इट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू एसेस. और अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं. Differentiate between open loop and closed loop system. Really easy. Open loop system have a gain of hs and closed loop system have a gain of, let me just write it, gs upon, this is in the s domain, 1 plus, or it can be minus as well, gs hs. GSHS.
edges. Don't consider it as a multiple, it is a function of edges. Similarly with GS as well. So this is the whole open loop, and there are multiple examples for this. The example can be a fan that has a sensory output, and with respect to a standard और conventional fan, एक ऐसा फैन जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, वो क्लोज लूप सिस्टम का बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, और जो ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल है वो हमारे कन्वेंशनल फैंस हैं. दूसरा क्वेश्चन है वो फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन फॉर dy by dt प्लस 3y इक्वल्स टू u. सो रियली रियली बेसिक क्वेश्चन. ये एस वाई एस के बराबर हो जाएगा, ये 3y के बराबर हो जाएगा. y और u को हम लोग एक तरफ ले लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा. लेट्स जस्ट सी द आंसर्स. तो यस 1+3 जैसे कि आपने देखा. और एरर ये क्वेश्चंस जो हैं अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स फॉरगेट अबाउट दीज क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर मेंट टू बी डन जब आप एक बार ये सारी चीज़ें देख लें. ऑलराइट, तो अभी हम लोग इसको यहीं तक रखेंगे. फिर वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स फर्दर.